This is not an ordinary journey. This is a very, very important journey in our Bharat civilization. Along with the Punganur cow, Riddhi, both Swamiji and Riddhi, they have walked a minimum of 10 kilometers every single day, and they have almost covered 5,150 kilometers. And Swamiji, in fact, has walked more. And I take this opportunity to seek the blessings of Swamiji for the punishment he has taken upon himself by walking barefoot. He was a normal human being with a normal life, but one fine day decided to sacrifice everything in the service of Bharat Mata, and more importantly, he believes only by saving our indigenous breed of cattle, we can fix the soil. By fixing the soil back, we can reclaim the glory in our agriculture. And every day we know thousands and thousands of our indigenous cattle are getting slaughtered, many of them illegally. And this walk for the last 192 days across the length and breadth of Bharat is an awakening call for all of us to conserve our indigenous breed of cattle. Indigenous breed of cattle varies from Kashmir to Tamil Nadu in different names. Just like Riddhi is a Punganur breed, likewise we have the Kangayam breed, and we have different breeds even within Tamil Nadu, many different breeds within Bharat. And Swamiji is taking this opportunity to raise awareness on the indigenous breed of cattle, and then we start buying it, breeding it, growing it. We start using indigenous breed even for consumption of milk throughout its life cycle. And more importantly, the cow dung and the urine coming from the indigenous breed will fix our soil. That way, many of the problem that is plaguing the modern agriculture can be eradicated by a simple solution. In the age-old time, we knew it was a cycle, where the indigenous breed that is present in a farm, it solved a lot of problems. Meaning, the cow dung and the urine, it solved many of the problem, right up to the gobar gas we got. It fixed a lot of micronutrients, microbes in the soil. And more importantly, we started using a lot of products coming out of cow's urine and dung on a daily basis. Now, once that thing is cut off, even Macaulay said, Thomas Babington Macaulay, who gave the infamous education model for our country, once said, if you want to disturb the Indian economic... கேந்திரம் இருக்கு. நீண்ட நெடிய தேசத்துக்காக தன் வாழ்வை அர்ப்பணிச்சவங்க. பசு பாதுகாப்பு விஷயமாக சங்கம் எடுத்துக்கொண்ட முன்னேற்பாடுகள், இந்த யாத்திரையோட அவருக்கு சம்பந்தம், இந்த விஷயங்களை பற்றி அவர் பேசுவாங்க. அவருடைய பேச்சு ஹிந்தியில் இருக்கும். அதை மொழிபெயர்ப்பதற்காக நம்முடைய நண்பர் ஸ்ரீ சுபாஷ் இருக்காங்க. அவங்க ஆர்எஸ்எஸ் உடைய கூட்டுறவுத்துறையுடைய பிராந்த அளவில் பொறுப்பாளர், தொழிலதிபர் மற்றும் பசு ஆர்வலர், பசு வழக்கறாரு. ஸ்ரீ சுபாஷ் மொழிபெயர்ப்பாங்க. श्री सुरभय नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थे पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्जालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं बहति जक्षार्थ मम पापं व्यपोहतु। श्री सुरभ्ये नमः। सभी एक साथ एक बार गोमाता की जय जय करेंगे। जगत वंदनीय गोमाता की। मंच के ऊपर विराजमान मेरे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाज के जीवन के अंदर में
गोमाता के लिए, राष्ट्र माता के लिए यशस्वी कार्य करने वाले सभी मेरे बंदनिया सभी को मैं चरण में प्रणाम करता हूँ। इस सभागृह में बैठे हुए सभी विद्यार्थी, अन्य सभी माता भगिनी और बंधुओं को मैं भी प्रणाम करता हूँ। மேடையில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும், கோமாதாவை ரசிக்கின்ற அனைவருக்கும், மாணவ மாணவியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। हम सभी जानते हैं समुद्र के मंथन की समय गोमाता की आविर्भाव हुए। ऐसे अनेक प्रकार का रत्न भी, पारिजात वृक्ष, हस्ती, घोड़ा, माता लक्ष्मी, आखिर में धन्वंतरी की हाथ में अमृत कलश बाहर आया। जो दैत्य है, जो दानव है, वो देवता है। इस दोनों के बीच में एक शर्त था समुद्र मंथन की समय। जो भी कुछ इस मंथन से बाहर निकलेगा तो दोनों में कहीं ना कहीं, दोनों तरफ में ये वितरित हो जाएगा। लेकिन गोमाता न देवताओं के पास में गई, ना असुरों के पास में गए, ये धरती पे आया। भगवान की जो सृष्टि है इसी पृथ्वी पे आया। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, इसको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। தேவலோகத்தில் அமிர்தம் எடுக்கும்போது இந்த ஆயுர்வேதத்தில் கிடைச்ச அமிர்தத்தில் நமக்கு கிடைச்ச ரெண்டு பொருள், ஒன்று வந்து கோமாதா. இந்த கோமாதா வந்து தேவதைகளுக்கு கையில் கிடைக்கல, அசுரர்களுக்கு கையிலையும் கிடைக்கல. ஆனால் இந்த கோமாதா வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக நம்ம மனிதர்கள் கையில் கிடச்சிருக்கு. இந்த கோமாதாவை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. इस कारण था कि सृष्टि के संवर्धन, सृष्टि के समन्वयता, सृष्टि की संरक्षण, ये सभी कार्य में अगर कोई सबसे बड़ा सहयोगी है, ये हमारी गोमाता ही है। இந்த சிருஷ்டியில் सृष्टि के संवर्धन, सृष्टि के समन्वय, इस सृष्टि की रक्षण, इसका अगर कोई सबसे बड़ा सहयोगी ये गोमाता ही है। इस कारण से गोमाता फिर से धरती पे आ गई। இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் ரட்சிக்கணும்னா, எல்லா பொருளுடைய நிவாரணின்னு சொன்னான்னா அது கோமாதா தான். அந்த கோமாதா நமக்கு ஏன் கிடைச்சி தர்த்தியில் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்குன்னா நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த கோமாதா யாருக்கு கையிலையும் கிடைக்காம மனிதர்களாகிய நம்ம கையில் கிடைச்சிருக்குது. एक ऐसे कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में एक प्रश्न आया स्टूडेंट के सामने। ऐसे ही जैसे हम सामने बड़े बड़े आयु के लोग बैठे हैं, उनमें से एक प्रश्न किया। एक अच्छे व्यक्ति ने, कई लोग उनको जानते हैं तो नाम नहीं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि गाय का जो संपर्क है वो कहां से कहां तक है। एक 9th क्लास का स्टूडेंट, उन्होंने उत्तर दिया, मिट्टी के नीचे जहां तक माइक्रोब्स हैं,
जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, वहीं से लेकर गरुड़ जहां उड़ान लगा सकता है उतने दूर तक गोमाता की संपर्क है। இதே மாதிரி ஒரு மாணவர்களுடைய மீட்டிங்கில் ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை ஒரு கேள்வி கேட்டுச்சு. அது யாருன்னு உங்கள் பேரை சொல்ல விரும்பலை. அவங்க கேட்ட கேள்வி, இந்த கோமாதாவுடைய இது எங்கே வர இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னா, பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோ லெவலில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள்லேருந்து நம்ம ராக்கெட் போய் மேலே நிற்கக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட தூரத்தில் இந்த கோமாதாவுடைய தொடர்பு இருக்கும் அப்படின்னாங்க. थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। स्टूडेंट में से थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते हैं? धन्यवाद। तमिल में ट्रांसलेशन हो रही है, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, समझ में आ जाएगा। निरंजन वर्मा गुरुजी ने, जो कि इस विद्या का बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, आपके सामने एक विषय रखा। इस पंच तत्व और पंचगव्य, अग्नि वायु जल, ये 5 प्रकार के तत्व होता है। दूध दही घी गोबर गौमूत्र, ये जो 5 गव्य होता है, तो इस दोनों के विषय में आपके सामने रखा। ये पंच तत्व और पंचगव्य, इसकी प्रतिनिधित्व गौमाता करती है। अगर भारत को कोई रोगमुक्त कर सकता है, केवल एक ही प्राणी के अंदर वो ताकत है जो कि भगवान ने सृष्टि किया है, वो साक्षात गोमाता है। டாக்டர் நிரஞ்சன்ஜினே ஒரு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க, நம்மளுடைய எல்லா நோய்களுக்கும் இதுக்குள்ள மருந்து என்னன்னு சொன்னா பஞ்சகவ்யம். இந்த பஞ்சகவ்யத்தில் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. இந்த பஞ்சகவ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை வச்சு எல்லா விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்திடலாம். அது இல்லாமல் இந்த பஞ்சகவ்யத்தில் எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் அதில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. हैदराबाद से यशस्वी वक्ता केवल गाय के ऊपर नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट इनको पकड़ा दो आराम से वो बोल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय उन्होंने बताया, हमको जो भोजन करना चाहिए वही भोजन करना चाहिए। वो खाना कैसा होना चाहिए? ये गो आधारित भोजन होना चाहिए। जो भी भोजन करते हैं ये गोमाता की आधार भोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताता हूं। ஹைதராபாத்ல இருந்து வந்த நண்பர் சொன்னார், இந்த நம்ம கூடிய சாப்பிடக்கூடிய உணவு அந்த கோமாதாவை சுற்றி இருக்கணும் அப்படின்னு. கோமாதாவிலேருந்து வரக்கூடிய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உணவு, அதாவது கோமாதா நடக்கக்கூடிய இடம், கோமாதா இதிலேருந்து வரக்கூடிய பஞ்சகவ்யத்திலேருந்து வரக்கூடிய இது நம்முடைய உணவுகளில் ஏதாவது ஒரு இதில் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. एक छोटा सा बात है, यहां पर कई माता भगिनी बैठे हैं, छोटे छोटे बालिकाएं भी हैं, बालक भी हैं। एक बार हम सब लोगों ने एक चीज को ध्यान दीजिए, माता के गर्भ में जिस समय संतान प्रतिष्ठित होता है, मां जो खाना खाती है, भोजन करती है, उसी के कारण उस संतान का, उस बच्चा का जो गर्भ में है, उसका हड्डी की तैयार होती है, उसकी मांसपेशियां तैयार होती है, उसके शरीर के अंदर में धमनी नस तैयार होते हैं, उसके अंदर में ब्लड जो प्रवाहित होता है उस मां के कारण होता है। நம்முடைய அம்மா கர்ப்பம் தரிக்கும் போது
கர்ப்பத்தில் உருவாகக்கூடிய ஒரு இது அந்த நம்முடைய அம்மா சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் இருந்து உருவாகிறது. நம்முடைய இரத்தம், சதை, எலும்பு எல்லாமே நம்ம மாதா வயிற்றில் இருக்கும்போதே அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருந்து நம்ம உருவாகிறோம். मां अगर जहर खाएगी, मां अगर पॉइजन खाएगी, ये बच्चा ठीक होगा क्या? நம்முடைய அம்மா வந்து ஏதாவது ஏதாவது அந்த மாதிரி விஷம் கலந்த மருந்தோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டாங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அது வந்து என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். बोलिए, रेस्पॉन्ड करिए, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம அம்மா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா நம்ம நேரத்துக்கு இருப்போமா என்ன? हाँ जी या ना जी बोलिए. சொல்லுங்க குழந்தைகள், நீங்க தான் சொல்லணும். நான் தமிழில் தான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. நம்ம அம்மா நம்ம வயிற்றில் நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது சரியான உணவு சாப்பிடல, தவறான உணவு சாப்பிட்டா நாம் அங்கே இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா? ये जर्सी और एचएफ के अंदर BCM7 नाम का जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, उसका जब वो भोजन में वो जर्सी का एचएफ का दूध जाता है, वो प्रोटीन हजम नहीं होता, सीधा ब्लड में जाता है, वही कैंसर पैदा करता है. நம்முடைய உணவில் வீசின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த புரோட்டீன் வந்து நாம் சாப்பிடும்போது அது சரியாக செமிக்கலைன்னா அந்த பொருள் தான் நம்மளுடைய உடம்புல வந்து கேன்சராக வந்து மாறுது. तो जर्सी का दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ஜெர்சி பால் குடிக்கணுமா வேண்டாமா? ஜெர்சி பசுலேருந்து வரக்கூடிய பாலில் இருக்கக்கூடிய ஒருவித புரோட்டீன் தான் குடிச்சா நமக்கு கேன்சர் வரும். அதை குடிக்கணுமா வேண்டாமா? हाँ जी या ना जी? நீங்கள் தான் சொல்லணும். குழந்தைகள் जोर से बोलिए, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? ஜெர்சி பால் குடிக்கணுமா வேண்டாமா? तो हाथ हिला कर बताइए ना, नहीं या हाँ. கையை அசைச்சு சொல்லுங்க, வேண்டாம் வேணும்னு. एचएफ का दूध पीना चाहिए क्या? जो कि बच्चे के ब्रेन के अंदर में अच्छे चीज नहीं आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको दवाई 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 ही खाना पड़ता है, ऐसा दूध पीना चाहिए क्या? நம்ம குடிக்கக்கூடிய ஜெர்சி பால்ல குழந்தைங்களுக்கு மூளையில இருந்து நம்ம பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அது நம்மளை வந்து மருத்துவத்தினுடைய உதவியால தான் நம்மளை வாழ வைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஜெர்சி பாலை நம்ம குடிக்கணுமா வேண்டாமா? अपने धरती जो मिट्टी है, जहां खेती होता है, कृषि होता है, उसको संरक्षण के लिए, उसका उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को ठीक रखने के लिए भगवान ने माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को और केंचुआ को, वर्त अर्म को जन्म दिया है. उनके कारण अपने जमीन ठीक होता है. उसके कारण हमको भोजन अर्थात गेहूं, चावल, सब्जी, भाजी ये अच्छा मिलता है. ऐसा चीज मां भोजन करेगी तो बच्चा अच्छा होगा, उसका मस्तिष्क भी ठीक होगा, देश के लिए, धर्म के लिए काम करेगा. பகவான் இந்த பூமியை படைக்கும்போது அதில் சின்ன சின்ன புழு பூச்சிகள்லாம் படைச்சாங்க. எதுக்குன்னா அந்த நம்முடைய பூமியை வந்து வளமாக வச்சுக்கணும். பூமியை வளமாக வச்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த புழு பூச்சிகள்லாம் உதவி பண்ணுது. எப்படி நம்ம அம்மா நம்ம வயிற்றில் இருக்கும்போது நல்ல சத்தான உணவுகளை ஒன்று நம்மளை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நினச்சாங்களோ அது மாதிரி இந்த பூமி மாதா அந்த புழு பூச்சிகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு வேண்டி வச்சுருந்தாங்க. थोड़ा विज्ञान का बात मैंने बताता हूं, आप उसको थोड़ा सा ढंग से समझिए. बोलिए. ஒரு அறிவியல் பூர்வமான உண்மையை சொல்கிறேன், அதை கொஞ்சம் श्रद्धा கொஞ்சம் கேளுங்க. जब यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स हम जमीन पे देते हैं ना, उसको ज्यादा आमदनी के लिए हमको ज्यादा मिलेगा ऐसा सोच करके देते हैं. थोड़ा सा ध्यान रखिए, यूरिया डीएपी की 30%
ये वायुमंडल में जाता है, पर्यावरण को नष्ट करता है। 30% ये जमीन में जाता है, माइक्रोज को, वर्थ अर्म को नष्ट कर देता है, मार देता है, जमीन को बंजर करता है। या माइक्रोज ये नीचे जाकर रहता है। और 40% ये पेड़ पौधे के अंदर आता है। उस कारण से जो चावल, जो गेहूं, जो सब्जी, वेजिटेबल्स हम जो लेते हैं उसके अंदर, हमारे अंदर आता है। तो हमको जन्म से मृत्यु तक अंग्रेजी दवाई खाने के लिए रास्ता बनाते हैं। तो हमको यूरिया, डीएपी खाना चाहिए क्या? இந்த யூரியா அண்ட் டிஏபியை நாம் நிலத்தில் போடுறோம். எதுக்குன்னா அதிகமான விளைச்சல் தரும் அப்படின்ட்டு. இந்த அதிகமான விளைச்சல் தரக்கூடிய இந்த டிஏபியும் யூரியாவும் நம்முடைய நிலத்தினுடைய வளத்தை 30% கொண்டுருது. அது நம்முடைய உணவுலையும் அந்த 30% மிக்ஸ் ஆயிடுது. அதுலேருந்து வரக்கூடிய நம்முடைய அரிசி, கோதுமை, இதில் எல்லாம் அந்த டிஏபியும் யூரியாவும் மிக்ஸ் ஆகி அது நம்ம உணவாயிருது. அந்த உணவிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் நம்மளை பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் நம்மளை ஒரு பேஷண்ட், அதாவது நம்மளுடைய நோயாளியாவே வச்சிருக்குது. प्रधानमंत्री जी ने, मैं किसी व्यक्ति का नाम, नरेंद्र भाई का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रधानमंत्री भारत का, उन्होंने कहा है कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में हमको सोचना चाहिए. நான் பிரதான் மந்திரின்னு சொல்கிறேன், நரேந்திர மோடின்னு சொல்கிறேன். இந்தியாவுடைய பிரதான் மந்திரி ஒரு யோசனையை சொல்லியிருக்கிறாரு. அதாவது 0%, அதாவது இயற்கை விவசாயம், அதாவது எந்த விதமான கெமிக்கலும் கலப்பில்லாத ஒரு விவசாயத்தை முன்னெடுக்கணும்னு சொல்லி. ये प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसको गो आधारित फार्मिंग या कृषि कहते हैं, ये गोमाता के गोबर गौमूत्र के द्वारा ही कृषि करना, इसका नाम है जीरो बजट प्राकृतिक कृषि. अपने तमिलनाडु में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स, तमिलनाडु में हम जो किसान हैं उनको पूछिए, यहां जो किसान बैठे होंगे खुद देखिए, 10 से 15 हजार रुपया आप यूरिया, डीएपी लगाते हैं. पेस्टिसाइड उसके साथ साथ में आता है. पंजाब में 22,000 रुपीज वो एग्रीकल्चर में लगाते हैं. गोमाता की आधार में कृषि करेंगे 650 to 1,000 रुपीज में 1 एकड़ की जमीन 2 गोमाता के गोबर गौमूत्र से तैयार हो जाएगी. जो व्यक्ति के पास में गोबर गौमूत्र है या 2 गोमाता है, वो आराम से 1 एकड़ की जमीन कर सकता है. इसलिए उसको जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कहते हैं. ஜீரோ, அதாவது 0% இயற்கை விவசாயம், அதாவது எந்த கலப்பும் இல்லாமல் கோமாதா, அதாவது பசுவை டிபெண்ட் பண்ணி நாம் பண்ணக்கூடிய விவசாயத்தை தான் அந்த 0% இயற்கை விவசாயம், அதாவது 0% எந்த விதமான கெமிக்கல் கலப்பில்லாத விவசாயத்தை சொல்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாருமே டிஏபி, யூரியாவுக்கு வேண்டி ஒரு ஏக்கருக்கு 15,000 ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க. இதே பஞ்சாபில் 20,000 ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாம் இந்த கோமாதாவுடைய கோமூத்திரத்தையும் கோஷானத்தையும் வைத்து விவசாயம் பண்ணால் ஒரு ஏக்கருக்கு வெறும் 1000 ரூபாய் தான் செலவாகும். இந்த விவசாயத்தில் எந்த விதமான கலப்பும் இல்லாமல் ஜீரோ, அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த இயற்கை விவசாய முறைக்கு இது இட்டு செல்லும். भारत के बाहर के जो लोग हैं, विदेशी हैं, इन सब लोगों का जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, हम सब लोग को समझना चाहिए. बोलिए.
இந்த பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாருக்கும் ஒன்று இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். वो जानबूझकर किसानों से गाय को अलग कर दिया. स्वार्थी राजनीतिक नेता लोगों ने उनको खेती से अलग कर दिया. गांव से किसान को, फार्मर्स को अलग कर दिया. जब तक किसान के पास में गोमाता रहती थी, भारत के अंदर में रोगों की संख्या, रोगियों की संख्या नहीं की बराबर थे. நம்மளுடைய சுயநலத அரசியல்வாதிகளும் சுயநலமாக இருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் பீப்புளும் சேர்ந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து கோமாதாவை தனிப்படுத்திட்டாங்க. இந்த விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து கோமாதா தனியாக போனதுனால நம்மளுடைய ரோகிகள், அதாவது நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை பெருகிடுச்சு. நம்ம எது வரைக்கும் கோமாதாவை வச்சு விவசாயம் பண்ணமோ அன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை 0க்கு ஈக்குவலாக தான் இருந்துச்சு. அதாவது இல்லைன்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. एक छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं, सब लोगों ने उत्तर देना. ஒரு சின்ன சின்ன क्वेश्चन கேட்க போறேன், அதுக்கு நீங்க கவனமா பதில் சொல்லுங்க. भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है? கடவுளுக்கு எந்த பால் மிகவும் பிடித்தமானது? जर्सी का? ஜெர்சியா? ये सर नो बलिए. एचएफ का? भैंस का? पैकेट का? किसका? गोमाता का दूध ये भगवान को प्रिय है. मृगन जी के ऊपर जो अभिषेक होता है, शिव जी के ऊपर जो अभिषेक करते हैं, देवी मां के ऊपर जो अभिषेक करते हैं, ये अगर गोमाता का दूध का अभिषेक नहीं है, वहां से कुछ भी आशीर्वाद, कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नहीं मिलने वाला है. நம்மளுடைய கோயில்களில் எல்லாம் அபிஷேகம் நடக்கும்போது கோமாதாவோட அபிஷேகம் தான் நம்ம பண்ணுறோம். அந்த கோமாதாவோட அபிஷேகம் பண்ணலைன்னா நமக்கு நிச்சயமாக வந்து அந்த சங்கர்ஜியோடையோ இல்லை அம்பாலோடையோ ஆசீர்வாதங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கான எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் இல்லை. हम लोग हवन करते हैं ना, நம்ம வந்து யாகம் பண்ணுறோம். हवन करते हैं, நம்ம யாகம் பண்ணுறோமா? कौन सा घी लगाते हैं उसमें? कौन से घी की आहुति करते हैं? நம்ம இந்த யாகத்தில் என்ன கீ போடுறோம்? எந்த விதமான நெய்யை ஊற்றுறோம்? அதில் சொல்லுங்க. गाय का घी. गाय का. ये छोटी प्रजाति का गाय अपने पास में है, रिद्धि उसका नाम है. बालकृष्ण जी ने उस नाम रिद्धि का दिया है. अगर हवन में, यज्ञ में गोमाता के दूध से जो घी की निर्माण होती है, दूध को दही बनाना, दही को मंथनी से उसके मक्खन निकालना, उसमें से जो घी निकलता है उसको हवन में हम देते हैं. उस यज्ञ अग्नि के कारण हमको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है. நாம் யாகம் பண்ணும்போது கோமாதாவுடைய கீயை ஊற்றுறோம். அந்த கீ எங்கேருந்து கிடைக்குன்னா, நம்ம பாலகிருஷ்ணமிஜி வச்சிருக்கிற இந்த காய் மாதிரி இதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பால், தயிர், அதிலிருந்து கடைஞ்சி எடுக்கிற வெண்ணெய், இதிலேருந்து உருவாக்குற நெய்யை ஊற்றி நம்ம யாகம் பண்ணுறோம். இந்த யாகத்தில் இந்த கோமாதாவுடைய நெய்யை ஊற்றுறதுனால தான் நமக்கு சக்தி கிடைக்குது. आज भारत वर्ष में 48 लाख मंदिर मठ है. 48 लाख मठ मंदिर है. 18 लाख साधु संत है. ये सभी के साथ में, जैसे निरंजन गुरु जी हमारे आचार्य हैं, ऐसे आचार्य भारत वर्ष में 60 लाख है. 16 लाख. ये सभी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं. बहुत कम लोग उसके अंदर हैं
जो कि गोमाता का दही, दूध, घी, गोबर के रस, गोमूत्र, गंगा जल के साथ मिला करके हवन पूजन करते हैं, उनको छोड़कर 80% लोग आज देवस्थान की पूजा जिस ढंग से करते हैं, भारत की धर्म नष्ट होता है। इसी भारत के धर्म की रक्षा करना है तो गोमाता की शरण में आना पड़ेगा। இன்னைக்கு பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய 48 கோயில்களும் 17 லட்சம் சாதுக்களும் சன்னியாசிகளும் எதை வச்சு நம்ம பூஜை பண்ணுறோம்னு சொன்னால் கோமாதாவுடைய பாலும் தயிரும் இதை நெய்யும் வச்சு தான் நம்ம யாகம்லாம் வளர்த்து இது பண்ணுறோம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து இந்த கோமாதா தான். இந்த நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா 80% பூஜா காரியங்களும் நம்ம கோமாதாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. कमल टावरी जी ने यहां पर उद्गार से कहा कि सबको मिलकर के करना है। आप अगर कल्पना करेंगे, एक 2 उदाहरण देके मैं समाप्त करने वाला हूं। आई विल फिनिश ओनली 2 उदाहरण। भारत की जिस समय स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहला जनगणना हुआ, उस समय 62 करोड़ गाय थे, गोवंश था। हमारा गोमाता 20 से 25 तक संतान देती है। பாரதம் விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு 62 lakhs 60 கோடி करोड़ 60 கரோட் நம்மகிட்ட பசுக்கள் இருந்துச்சு. அதில் வந்து 62 करोड़ गाय थे। பாரதம் விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு நம்மகிட்ட 62 கோடி பசுக்கள் இருந்துச்சு. நம்மகிட்ட 20 से 25 तक संतान देती है। 20 to 25 அது வந்து கன்றுகளை ஈண்டுச்சு அந்த சமயத்தில். अगर 10 भी दिया, आज टुडे 602 करोड़ गाय गोवंश होना चाहिए। அது மினிமம் 10வது கொடுத்திருந்தா இன்னைக்கு வந்து 600 கோடி பசுக்கள் நம்மள்ட்ட இருந்திருக்கணும். आज भारत के गाय सरकार ने कहते हैं कि 19.4 करोड़ गाय है। இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மகிட்ட மொத்தமே 95 கோடி பசுக்கள் தான் இருக்கு அப்படின்னு. लेकिन सरकार की भाषा में जर्सी, एचएफ, मिक्स ब्रीड एंड भारत के गाय मिला करके 19.4 है। 95 கோடி பசுக்கள்ல 4 கோடி 95 லட்சத்திலேருந்து 4 கோடி பசுக்கள் தான் இருக்கு. इधर इधर है, इधर है, इधर है। बोलिए बोलिए बोलिए। இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பசுக்கள்ல 95 கோடி பசுக்கள்ல 4 கோடி பசுக்கள் தான் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கு. இது அரசனுடைய புள்ளி விவரங்கள். सरकार की भाषा में जर्सी भी गाय है। सरकारोடைய இதுல जर्सी पशु इंक्लूडेड। होलिस्टियन फ्रिजन भी, एचएफ जिसको कहते हैं, वो भी गाय है। होलिस्टी फ्रिजन, एचएफ बोलिए, एचएफ बोलिए। HMG அது கூட இந்த பசுவுடைய வகையில தான் வந்துட்டு இருக்கு. जब मिक्स हो जाता है वो भी गाय है। அதாவது கிராஸ் பிரீட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுவும் பசுவுல தான் நாம எடுத்துக்கிறோம். लेकिन भारत नहीं मानता ये तीनों गाय है। இருந்தாலும் நம்முடைய பாரத் நாம வந்து அதை ஒத்துக்கல, இந்த மூணும் பசுன்னு சொல்லி நம்ம ஒத்துக்கல. सरकार की भाषा को बदलनी पड़ेगी। भारत की जो गाय है, भारत की जो ब्रीड है, उसी की संख्या अलग से अगर बताएंगे वो 19 करोड़ नहीं है, वो 11-12 करोड़ है। நாம வந்து அரசு சொல்லக்கூடிய இதை வந்து ஒத்துக்க முடியாது. நாம வந்து இந்த 3 பிரீடையும் ஒன்னா சொல்ல முடியாது. பாரத்தினுடைய நம்முடைய பாரத தேசத்தினுடைய பசுக்களை வந்து தனியா சென்சஸ் எடுத்து சொல்லணும்.
அந்த ரெண்டையும் தனிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 600 to 620 करोड़ गाय इतने नेचुरल डेथ नहीं हो सकते. उनको जो हत्या हुई है, इस हत्या का हमको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमको गो रक्षा, गो सेवा कैसे करना. இந்த பாரதத்தில் இந்த 60 கோடி பசுக்களை கொண்டு இருக்கிறாங்க. இதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டியது இருக்குது. இந்த பசுக்கு சிந்திக்கிறது மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரக்ஷா பண்ணணும், எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போதைய முக்கியமான வேலை. वेरी सिंपल वर्क. जो भोजन करना चाहिए, जैसे आपने बताया, वो ही करना. நாம் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத ஜி சொன்னது மாதிரி அந்த அளவில் जो दूसरे को खिलाना चाहिए वही खिलाना. மற்றவங்களுக்கு நாம் எது கொடுக்கிறோமோ அதே நாம் சாப்பிடணும். जो ईश्वर को, भगवान को चढ़ाना चाहिए वही चढ़ाना. ये गाय की आधार होना चाहिए. நாம் கடவுள கோயிலில் அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் அந்த கோமாதாவிலிருந்து கிடைக்கிறது மாதிரி இருக்கிறத அந்த அபிஷேகத்தை நாம் பண்ணணும். मन में नहीं, हम लोग प्रतिज्ञा करना चाहिए. गाय का एक बूंद, एक ड्रॉप ब्लड जमीन पे गिरता है, उससे पहले हमारा ब्लड गिरना चाहिए. எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்குங்க. அவங்க சொன்னது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம எல்லாரும் உணர்வுபூர்வமாக அதை எடுத்துக்கணும். ये संकल्प ही हमको, भारत को, इस सृष्टि को रक्षा करने वाला है. பசுவினுடைய ஒரு சொட்டு ரத்தம் விழுவதற்கு முன்னாடி நம்ம ரத்தம் அதில் விழுந்திருக்கணும். அந்த மாதிரி நாம பசுவை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி बोलो गौ माता की, भारत माता की. தன்யவாதம். பசுவுடைய ஒரு சொட்டு ரத்தம் கீழே விழுவதற்கு முன்னால் நாம் நம் ரத்தத்தை சிந்தி பசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த எண்ணத்தை நம்ம மனசில் பதிய வச்சுப்போம். அடுத்ததாக இறுதியாக இந்த மாபெரும் பாத யாத்திரையை நடத்தி ஒரு பெரிய எழுச்சியை உண்டாக்கி நம்ம மனசில் ஒரு நீங்காத ஒரு பசு பக்தியை உண்டாக்கிய ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ண குருசாமி அவர்களை அவருடைய ஏற்புரையை கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறோம். जय गौ माता. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की. गौ माता की जय. गौ माता. सभी को मंच पे हमारे मेरे साथ हर कदम तो नहीं चले, मगर मेरे दिल में जो मेरा तड़प है उसको समझ के हमारा अजीत जी महापात्रा जी देश भर में ये पादयात्रा को मेरे को सहकार करे. और हमारे निरंजन वर्मा गुरु जी, मैं जहां भी हो तो वहां दिल्ली को आए, यहाँ आए. पंचगव्य से गाय को प्रमोट करना बोल के एक महान व्यक्ति पूरा देश भर में गव्य सिद्धों का तैयार कर रहे हो, महान व्यक्ति को मेरा नमन. और हमारा तंवर जी, उनका बात बहुत क्या है, कैसा तलवार के जैसा रहते, जैसा तलवार के जैसा हमारा कमल तवोरिया जी, उन्होंने इतने उम्र में भी गाय के लिए, धर्म के लिए मैं हूं बोल के ये काम सभी नहीं कर सकते, हम सब मिलके करना है बोल के. तो हमारा कमल तवोरिया जी मेरे साथ, हमारा तेलंगाना राज्य में हर वक्त मेरे को कुछ भी तकलीफ है तो कुछ भी है तो हमारा प्रवीण जी जो धर्म सेना के लिए देश भर में लड़ने का एक ऐलान कर रहे के, और गाय मां के लिए और धर्म के लिए हर क्षण तड़प तड़प के उन्होंने अपना जीवन को पूरा अपने
ये धर्म कार्य में करे सो प्रवीण जी और हमारे साथी हमारा जिग्नेश जोशी जी, तेलंगाना गुजरात संघ के अध्यक्ष, महान व्यक्ति, हमारा साथ हर कदम रहते। हमारा तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी कोर्ट के अध्यक्ष महोदय जी, श्रीनाथ जी, ये पादयात्रा को मेरे को हर वक्त बहुत बहुत सहायता किया। ये पादयात्रा कैसे चलता, पैसे कैसे होना, इसका मेहनत कैसे करना, क्या है ये पूरा उन्होंने पूरा देख लिए। और हमारा साथी जो अखिल भारत गौ सेवा फाउंडेशन के हमारे लोकेश जी, मल्लेश जी, मुरली जी, गोवर्धन रेड्डी जी, मानिक जी, राघवेंद्र जी और सभी हमारा गौ सेवा फाउंडेशन के बहुत बहुत उन सबका मैं प्रणाम करते हुए अभी यहाँ पे मंच के विवेकानंद ऑडिटोरियम में मैंने एक कसम खाया कि ये पदयात्रा करना बोल तो कहां से करना। जो महान व्यक्ति है, जो आदि शंकराचार्य जी महान व्यक्ति, जो हिंदू धर्म के लिए देश भर में परिभ्रमण करा, भारत माता के तिलक से भारत माता के चरणों तक पदयात्रा करना, ये चरण हमारे विवेकानंद जी के यहाँ चरणों के ने ये पदयात्रा करना, ये गाय के रक्षा के लिए बोल के ये पदयात्रा का हम ये इसका पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे है सो सभी लोगों को मैं विनम्र प्रणाम करते हुए मैं बालकृष्ण गुरुस्वामी आप सबको पाद नमस्कार करते हुए, ये पदयात्रा सिर्फ मेरा नहीं है, खाली मैं तो शारीरिक रूप से मैं पैदल यात्रा करा, देश भर में पैदल यात्रा करा, मगर पूरा आप सभी लोगों का साथ है। आप हर राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल का राज्य के सभी लोगों का ये पदयात्रा है, जो मेरे पीछे रह के मेरे को ये पदयात्रा चलाया था। आप सभी लोग मिलके ये पदयात्रा आप सब करे जैसा है। मेरे साथ मेरे दिल के ऊपर अय्यप्पा स्वामी का माला है और मेरा साथ गाय माँ है, इसीलिए ये पादयात्रा सक्सेसफुली वी आर कंप्लीटेड और पादयात्रा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी along with a small रिद्धि गौ माता। आई एम थैंक यू फॉर ऑल पीपल। ये समय पे मेरा जो साथ दिया, मेरा साथ चला हमारा सतीश जी और हमारे सिद्धू, हमारा मणिकंठा, मणिहेंद्र जी, ये हमारा साथ चलकर ये सभी लोगों ने एक से नहीं होता, हमारा साथ चल के हमारा को साथ दिए, ये सभी को मैं नमन करते हुए मैं दो शब्द करता हूं। और यहाँ के तमिलनाडु में इतना बड़ा मंच पे ये कार्यक्रम चल रहा बोले तो हमारा अजीत जी महापात्रा जी और हमारे विश्वनाथ जी तकरीबन 15 से 20 दिन से हम दोनों का रात तमाम बातचीत हो रहा था संघ के लिए ये कार्यक्रम कैसे करना बोल के महान व्यक्ति है, आपको नमन करते हुए ये सब लोगों का ये और हमारा तेलंगाना के हमारा बसवराज श्रीनिवास जी और हमारे सुधाकर शर्मा जी और रमेश गुप्ता जी और सभी लोगों ने जो हमारे तेलंगाना राज्य के लोग हैं बहुत बहुत मेरे को सपोर्ट करे। ये सभी लोगों को, गुंडा मल्लाना जी को, शास शबरमला अय्यप्पा सेवा समिति को और भाग्यनगर अय्यप्पा सेवा समिति को, अखिल भारत अय्यप्पा धर्म प्रचार सभा को और बहुत सारे लोग जैसा अय्यप्पा लोग भी बहुत सारे लोग ये मेरे को सपोर्ट करे। पहली बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये cow along with the Irumuri he went by foot from पंबा टू शबरमला। पहली बार एक गाय मां शबरमला अय्यप्पा स्वामी को इरुमुरी लेके गया है कि अय्यप्पा स्वामी को यह मांग करते हुए कि ये गाय के रक्षा करे, ये धर्म के रक्षा करे। लाखों अय्यप्पा माला डाल रहे, ये लाखों अय्यप्पा जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लाखों लोग शबरमला अय्यप्पा स्वामी करने जाते। ये सभी अय्यप्पा का फर्ज है ये गाय के रक्षा करना, ये सभी अय्यप्पा लोगों का फर्ज है ये धर्म का रक्षा करना, ये हमारा सबका फर्ज बनता है। ये हम धर्म में, ये धर्म नहीं है तो अपने को किसी धर्म नहीं है, पूरा
दुनिया में जो एक ही देश है हम जो रह सकते वो हमारा महान भारत देश है। ये देश का वासी है, हम गर्व कैसे कर सकते, हम हिंदू है, ये देश हमारा है, हम गर्व से कर सकते। ऐसा देश को आगे के बच्चों को हम स्लेवरी नहीं करना। कहीं को बोले तो 1000 साल तक हम स्लेवरी में थे, 800 साल मुगलों ने, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने अपने को बहुत 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 अपने देश को बहुत अपने संस्कृति को बहुत नष्ट कराए है। आगे के दिन में अपने बच्चों को ये स्लेवरी से अपन स्लेवरी में जाने का ये नहीं करेंगे। हम सब मिलके ये देश के रक्षा करना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे केरला लोग हो, चाहे तमिलनाडु हो, हम सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पहले धर्म की रक्षा करो, धर्म रक्षति रक्षितः। ये धर्म का रक्षा हम करें तो ये धर्म अपने को हमारा बच्चों का रक्षा करने वाला है, हमारा धर्म। ये पाद यात्रा में कई को सभी जन पूछे कई को पाद यात्रा करना है। ये पाद यात्रा का मकसद एक है। मैं कार में जाके एक रथ लेके गए तो कोई भी नहीं सुनता। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे को कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा आदमी एक गाय के साथ पूरा देश भर में पैदल यात्रा कर रहे बोले तो सभी जने उनको देखने को आते, सभी जने उनको सुनने को आते, सभी जने हम भी गाय के लिए कुछ ना कुछ करना बोल के उनका दिल में एक पैदा होके एक गाय को बचा सकते, एक धर्म को बचा सकते बोल के ये इतना बड़ा पाद यात्रा करा था मैं। ये गाय मां उनके जात के रक्षा के लिए पूरा देश भर में पाद यात्रा कर रहे, बहुत सैक्रिफाइस करे ये गाय मां। ये गाय मां को मैं पाद नमस्कार करते हुए मैं जिंदगी भर मेरा ये गाय का सेवा करते रहता हूं। हर भारतवासी एक ही सोचना, जो पैसे कमाया, जो आपके शरीर है ये धर्म के लिए उपयोगी नहीं है तो आपका शरीर और आपका धन पूरा व्यर्थ है। जो जिएंगे 4 दिन जिएंगे मगर देश के लिए, धर्म के लिए जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, आगे के पीढ़ी के लिए जिएंगे, अपना बच्चे के लिए हम जीना जिएंगे। ये गाय एक जानवर नहीं होता, ये गाय हम सबका जान है। ये गाय एक प्राणी नहीं होता, ये गाय हम सबका प्राण है। ऐसे जान को, ऐसे प्राण को बचाने का हम सबका कर्तव्य है। हमारा देश वो देश है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर मजहब वाले यहां पे जीते हैं, हर मजहब को रेस्पेक्ट करते हैं। जो हम रेस्पेक्ट ये गाय को कर रहे, सभी मजहब वाला इसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। हमारा मजहब वाला भी हम अपना गाय का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। संविधान में आर्टिकल 48 ये है, ये गाय के हत्या नहीं होना। भगवत गीता, कुरान और बाइबल में भी है ये गाय का हत्या नहीं करना। मगर ये गाय कब जरूरत होता? अपने घर को ग्रो से करने के लिए गाय का जरूरत रहता। हम जो मांगते वो गाय को प्रणाम करते। हमारा बीवी अच्छा रहना, हमारा बच्चे अच्छा रहना, हम पैसे कमाना, हम ये करना, हम वो करना बोल के मांगा लेते गाय को। ये गाय बहुत तड़प कर मर रहे हैं। जो जिंदा ही ये गाय के ऊपर पानी डाल के, उबलता हुआ पानी डाल के ये मां को कत्ल करने में बहुत खतरनाक से मार रहे। इसीलिए मैं तेलुगु में ये मां का एक छोटा गाना है, बहुत सारे लोग यहां से लाइव में देख रहे हैं ये वीडियो। एक बार सोचिए, ये मां का रक्षा करना, ये धर्म का रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं होता क्या? ये मां तड़प कर रो रहे कहते, ये मां पूछ रहे कहते, कोडुका नन्नु कोटा कम्मकुरा కళ్ళు మూసేదాకా కష్టపడతా నీ కోసం కొడుకా నన్ను కోట కమ్మకురా.
అవ్వతోటే అన్నమొచ్చిన అయ్యకారు ఎడ్లనిచ్చిన పాలు ఇచ్చి నిన్ను పెంచిన పెద్ద కాపుగా నిన్ను చేసిన ఇప్పుడు నేను ముసలినైతిని వట్టిపోయిన గేదెనైతిని ముట్టి కాసురముల కోసము కొట్టి చంపే వాళ్ళకిస్తవా కొడుకా నన్ను కోతాకమ్మకురా అల్కబీరోళ్ళు వస్తారంట ఎక్కువ పైసలు ఇస్తారంట పైసలాసకు నువ్వు పట్టి వాళ్ళకప్పగిస్తే కట్టి కొట్టి పడేస్తారంట నీళ్లు మేత పెట్టరంట కడుపు మండి కళ్ళు రగిలి కదలలేక కన్ను మూస్తా కొడుకా नन्नु कोता कम्मकुरा। ये गाय को कतल खाना में लेके गाय रोते कहते, ये गाय कई को रोते कहते बोलो तो ये गाय बोलते कहते अरे पागल मेरा बिना तुम लोग का जीना हराम होता, तुम लोग ये दुनिया पे नहीं जी सकते, इसीलिए उनका आंखों में आंसू आते कहते ये गाय मां का। ऐसा गाय जो परम पवित्र साइंस है ये गाय के पीछे। अभी जो अजीत महापात्रा जी ने साइंस बोला था ये गाय के साइंस है। देयर इज नो माइक्रोब्स इन दिस अर्थ, वी कैन क्रिएट द माइक्रोब्स ओनली विथ काउ यूरिन एंड काउ डंग ओनली। वही देशी काउ का हम रामायण महाभारत काल से गए ये पृथ्वी पे एग्रीकल्चर कर रहे। अभी ये पूरा सूक्ष्म जीवों नहीं है, इसके ऊपर पूरा पेस्टिसाइड्स और यूरिया भरा हुआ है। आगे के ये बच्चों का खाना कैसे? अपना जीवन तो हो गया 50 साल के ऊपर सभी जने यहाँ पे, ये बच्चों का भविष्य कैसा? हाउ कैन वी सेव दिस चिल्ड्रन लाइफ? ये बच्चों को जैसा हम जिए, हमारा बुजुर्गों ने 100 साल जिए थे, जो गो आधारित केदिए से जो खाना खाए उससे 100 साल जिए अपने बुजुर्गों ने। अभी हमारा हालत क्या हो रहा, आगे के बच्चों का हालत क्या होता? ये सभी देशवासी ने एक बार सोचिए, आपका बच्चों का हालत के लिए, आपका बच्चे अच्छे है तो आप जो कमाए पैसा जो करोड़ों रुपए आपके बच्चे खाना पड़ो तो ये गाय बचना, ये पृथ्वी बचना और ये धर्म बचना, जे भी आपका बच्चे अच्छा सुखी से रह सकते। आज विदेशों ने तकरीबन 40 के ऊपर देशों ने अपने गाय का ब्रीड, देशी गाय का ब्रीड के लेके वहां पे उन लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं। रिसेंटली जापान में एक रॉकेट लॉन्च हुआ, ये गाय के गोबर से एक मीथेन लिक्विड निकाल के रॉकेट का लॉन्च करे। अमेरिका में काउ कडलिंग बोल के एक 10 मिनट एक काउ को हक करे तो अपने उच्छ्वास निश्वास और उसके उच्छ्वास निश्वास दोनों मिल गए तो अपने इसमें पूरा माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता। एक गाय का साथ रहे तो बहुत अपना आरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे वक्ता ने गाय के लिए बोला, मगर आचरण करना। आज आए यहाँ पे सुने, अब चले गए, फोटो निकाले गाय के लिए, ये काम नहीं है। आचरण करना है। आपके दिल के ऊपर हाथ रख के एक बार सोचिए, आपके बच्चे के लिए बालकृष्ण गुरुस्वामी पद यात्रा करा, उनके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए करा। कल के दिन मेरा बेटी अच्छा रहना, मेरा माँ अच्छा रहना, मेरा माँ अच्छा रहना, वो कोई भी हेल्थ इश्यू रहना, जो खा रहे वो जहर नहीं रहना, वो सब जो है हेल्थी खाना खाना बोल के मैं ये पद यात्रा करा। मेरा समाज अच्छा रहना, मेरा राज्य अच्छा रहना, मेरा देश अच्छा रहना। आप सब लोग भी वही थिंक करो, आप सब लोग आपके बच्चों के लिए सोचो। तो यही मैं बोलते हुए, इतना बड़ा पदयात्रा मैं सोचा भी नहीं था, ये 180 दिन कैसा गुजर गया। एक बार मैं स्टेज पे हमारा सतीश जी को, हमारा सिद्धू जो पदयात्रा में मेरे साथ है, मणिकंठा, एक बार प्लीज कम अंदर टू यस। मैं पदयात्रा शुरू करे वक्त 10 जने थे, वो सभी लोगों को, जैसे हमारा लोग प्रभाकर रेड्डी जी, नरसिम्हा जी,
प्रेम कुमार जी, तिरुपति जी, पवन जी और पद्म संदेश जी, सभी लोग जो पदयात्रा चले उन सबको भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए, ये हमारा साथ चले, ये हमारा सिद्धू गाय के लिए बहुत, ये गाय भी हमारा नहीं होता, ये गाय हमारा फ्रेंड एक अक्षय का है। एक ही बात मैं पदयात्रा को गाय लेकर जाता हूं बोले तो गुरुस्वामी हमारा गाय लेकर जाओ बोल के दिए, मगर इससे हमारे को बहुत अटैचमेंट हो गया। अब इसके बिना हम कैसे रह सकते हो मालूम नहीं है। तो अभी देखना ऐसे ऐसे छोटे बच्चे धर्म के लिए, गाय के लिए पैदल यात्रा में शामिल हुआ। आपके बच्चों को भी अपने धर्म के लिए और अपने गाय के लिए सभी लोग इकट्ठा करेंगे। बहुत बढ़िया, जरा जोर से खड़े होकर ताली बजाएं। स्वामी రండి ప్రవీణ్ గారు ముందు రండి। वाह, गाय माँ भी रेडी हो गए। ये गाय माँ कितना प्यारी है बोले तो जहां फोटो सेशन चलता आ जाता। अच्छा, बहुत अच्छा, जो सुनता रियली गुरुजी। एक बात को ये गाय माँ, मैं क्या करा कि ऐसे गाय के साथ पदयात्रा करना मेरा पूर्व जन्म सुकृत है। ये गाय के लिए हम सब इतना जने यहाँ पे आए, बहुत बहुत हम ये गाय का ये करते हुए। சரி, இன்னும் 5 நிமிஷம் அவ்வளோதான். ஓ, குதிச்சிட போகிறது. ये माँ के बिना ये यात्रा नहीं है। ये माँ के बिना इतना बड़ा यात्रा हम नहीं कर सकते। कसम से बोल रहा हूँ, हम एक एक रात ये माँ के साथ गुजारे, हम कभी नहीं भूलते। हम बहुत बहुत खुशकिस्मत है। నిజంగా మా జీవితంలో ఒక గోమాతతో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి పాదయాత్ర చేయడం, ఏ జన్మలో ఏం చేసుకున్న పుణ్యమో, ఈ జీవితం, ఈ దేహం, ఈ ప్రాణం ఈ గోమాతకి అంకితం. నిజంగా మా తల్లిదండ్రులు, నన్ను కన్న తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యము. నా భార్య పిల్లలు నా కోసం అహర్నిశలు ఆలోచిస్తున్నారు. मेरे बीवी बच्चे ने बहुत सैक्रिफाइस किया, मेरा माँ बहन मेरा भाई सभी ने बहुत सैक्रिफाइस किया। मेरे साथ मेरे दोस्तों ने बहुत बहुत सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। आप सभी लोग यहाँ केरला के पंचगव्य और तमिलनाडु के भंचगांव आरएसएस और विविध क्षेत्र से बहुत बहुत मेरे लिए बहुत करे। बस मैं जिंदगी पर ये ऐलान नहीं बोलता हूँ गुरुजी, आपको नहीं आपको हमारा निरंजन वर्मा गुरुजी प्लीज कम। नहीं आप जैसा महान सभी मिलके गाय को, अभी जो प्रवीण जी बोले, सभी मिलके गाय के रक्षा करेंगे, धर्म का रक्षा करेंगे। ये सब हम सबका फर्ज है। जय गौ। कई को बोले तो मैं जहां जहां स्वामी यीशु मिला, जहां जहां श्रेष्ठ राजनीतियों को मिला, एक बात तो बोल दिया कि 4 दिन का मेला है। भगवान अपने को कब बुलाता नहीं मालूम है। कल के काम को आज करेंगे, गाय के लिए कल करेंगे, परसों करेंगे। सोच है तो अपन को सुबह में भगवान कब आके दरवाजा खटखटाता नहीं मालूम। तो अपन आज से ही धर्म का काम करना, अभी से ही धर्म का काम करना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, गौ माता की। सब आखिरी கடைசி 3 நிமிடங்கள், விவேகானந்த கேந்திர கடைசி 3 நிமிஷங்கள், கடைசி 3 நிமிஷங்கள் தேசிய கீதம் பாடுறதுக்கு குழந்தைகள் வாங்க மேல. 1 मिनट। இப்போ 2 குறிப்புகள்। 1 मिनट ठीक से तमिल में ट्रांसलेशन करना। खड़े हो जाओ। आज विवेकानंद केंद्र के ये जितने स्टूडेंट्स हैं
आज का प्रोग्राम का सबसे आपके कारण से ही सफल हुआ। मैं आप सभी को अंतर से धन्यवाद प्रदान करता हूं। जय गौ माता। இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி శివశంకర్ మనోళ్ళందరూ వస్తూ ఒకసారి இந்த மாணவர்களுடைய பங்களிப்பினால் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. உங்க எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கடைசி 3 நிமிஷம் தேசிய கீழே பாடுறதுக்கு வாங்க. ஒரு மினிட், ప్రవీణ్ ஒரு நிமிஷம். இப்போ ரெண்டே ரெண்டு మీరు వస్తే குறிப்புகள். కొందరికి సన్మానాలు పెట్టుకో ఒకసారి రండి ప్రవీణ్ जरा हैदराबाद से जो है एक से आपसे फोटो उतरते दूर से आए प्रवीण जी टिंकू रहा बेटा सतीश ஜி शिवशंकर சில குறிப்புகளை लोकेश दा, கொடுத்துறோம். लोकेश ஜி நீங்க குறிப்பு. गुरु जी श्रीनाथन सिद्धू मणि ఏడి డ్రైవర్ మన ప్రసాద్ ఏడి గురుజీ ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ ना प्रवीण அன்பு செல்வங்களே, இப்போ சாந்தி மந்திரம் करना। தேசிய கீதத்தோட நிகழ்ச்சி நிறைவேற இருக்குது. ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்கீங்க. हम सभी खड़े हो जाएंगे குறிப்புகள் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். एक साथ में। सभी प्लीज स्टैंड अप ऑल स्टूडेंट्स। प्लीज सभी एक साथ में जनगण मन करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय धाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு இருக்கு. எல்லாரும் டைனிங் ஹாலில் உணவு சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும். இது எங்களோட அன்பு கட்டளை. உணவு சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிபிஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போங்க ப்ளீஸ். யாரும் சாப்பிடாம போகக்கூடாது. கீழே இருக்கு ஏற்பாடு. அந்த ப்ரெஸ் மீட் யார் சொல்கிறீங்க? ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு